स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया, लेट्स बिगिन सर। एक क्वेश्चन आप पूछो, नाम बताना, क्वेश्चन बताना। एवरीवन लिसन, इट्स important when the someone is sharing, you listen, and the next question is thrown to you and it's round robin system में किसी को भी पूछते हैं। जस्ट रिलैक्स। दीपक क्या सोच रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन माइंड? कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। वाओ, चलो ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। Okay, थैंक यू सर। so ladies first question, Divya. Yes, sir. Yeah, so why you want to do MCA? So this program will help me provide better opportunities in IT field. Even it will help me learning, gaining knowledge regarding application software. थोड़ा डर के बोल रही हो, एकदम साउंड वाले वॉइस से बोलने का। Okay, भले sir. आपका ऐसा ही आवाज रहेगा लेकिन तभी थोड़ा जोर में निकालने का आवाज। Okay, sir. Yeah. Okay. Akshay, why you want to do it from NMIMS? So, You know it is a deemed university, private university. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा जो देख रहे हो ऐसा नहीं चलेगा वहां पर। एक तो आप वर्चुअल दे रहे हो, okay, they are going to see your body language. They are going to see only two things, आपका आंसर और आपका बॉडी लैंग्वेज। तो दिस बॉडी लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेबल अक्षित। ओके, 5 मिनट्स का टाइम देना सर एक स्टूडेंट को, फिर हम कमेंट्स देंगे, चलेगा? हाँ चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ। So which subject you did not like it in the 3 years? And this question goes to Shreya. Which subject, I'll repeat my question, which subject you did not like it in the 3 years? You have 5 So there's minutes. no, Yeah. so there's no subject which I did not like. ऐसा कोई subject है नहीं as such. But I can say that I was. I don't remember in which subject I was weak at, like performing the practicals also I had no issues as such. I was able to do them, but at my own time. Like I had to prepare them my own self, like on my own. I had to go through the, the details and all the theory part, and then I was able to do everything. So there's no subject which I don't like. Okay. Anything else you want to say? No. Okay, done. Sir, बताइए comments आपका. Yeah, her answer was perfect, but her body language was little nervousness. Correct me. Okay. Yeah. Yes. So intention क्या है सर? ये क्वेश्चन का थोड़ा मुझे भी जानना था कि व्हाट इज द इंटेंशन की कौन सा सब्जेक्ट। जब भी मेरे को आया तो मैं ऐसा मुझे लगा कि मैं बोलूंगा ग्रीन टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 2 में कि आई डोंट लाइक दैट सब्जेक्ट। कौन सा टेक्नोलॉजी? कौन सा? ग्रीन टेक्नोलॉजी। हाँ, ग्रीन टेक्नोलॉजी। या यू कैन गिव दैट आंसर एज योर दिस वन के भाई ठीक है, एकदम थियोरेटिकल सब्जेक्ट था। Someone will say we have already studied from first standard to 12th standard English, still that was there in our first semester. Yes. देना है तो जवाब दे सकते हो करके communication, but we were wondering that was, but then when we found that subject, फिर बाद में उसको कवर भी करने का, बोलने का भी और उसको कवर भी करने का, then we found that no, this was the different angle of communication skills or English kind of thing or whatever it was there. So we learned many things in that. Okay, which was the positive. Earlier I had thought that, okay, this was not after being taught that subject, I didn't had that kind of regrets or anything. But before the subject was there, before when I joined in first semester, that time I had found that why this communication skills is there in IT. But then after that I found, ऐसा करके हाँ भी बोलो ना भी बोलो, उसको कवर भी करो, अच्छा लगेगा सामने वाले को कि हाँ इसमें पॉजिटिविटी है करके. Now what sir is telling your this. Now why I had already conveyed this with you people that why this question can come. So someone will say I didn't like mathematics. Mathematics was the worst. Okay. आधे से ज्यादा जन को मैथमेटिक्स पसंद नहीं होता है और वो जब भी वो मौका मिलता है ऐसा कुछ सामने वाला कुछ पूछता है, चने के झाड़ पे चढ़ाता है तो हम फट करके चढ़ जाएंगे उसके ऊपर. So then actually your mathematics is the
building block or the foundation for your programming language. When you joined your this, that time also your maths marks were there. On the basis of maths marks you had got the admission. So actually that is the building block. And if you say that I don't like mathematics, तो वहीं पे आपके नाम के ऊपर क्रॉस कर देंगे वो. आपको नहीं बोलेंगे you are selected. So ये मैं आपको वार्न भी कर रहा हूँ कि इतना बताने के बावजूद भी अगर किसी को बताना है तो you have freedom to do that. We will not stop you. We will not be there that time. But I am telling you, the second thing is there. Now the next question is coming to Rishabh. Which is your Yes, sir. favorite subject in the 6 semesters? My favorite subject was software quality assurance. Software quality assurance. Yes. So what was the positivity in that which you liked? I was hoping that I will be doing for software analysis or testing when I go for job and Okay. देखो जब भी आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करोगे ना तो इमीडिएटली मैंने तो आपको बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ लिया. आपको बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. सीधा उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आएगा. दे विल नॉट आस्क यू व्हाट वाज देयर फेवरेट और व्हाट वाज देयर इन दिस सब्जेक्ट करके. दे विल इमीडिएटली आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. एक्सप्लेन मी इन ब्रीफ. So why I am telling this? Because the same subject I will now pass it on to Spurti. हम लोग एक क्वेश्चन 2-3 स्टूडेंट को पूछते हैं सर. लेट्स हैव अ डिफरेंट हाँ. वर्जन आल्सो. Yeah, different versions. हाँ, Yeah. लेट हैव अ Spurti. 5 minutes. Go ahead, Spurti. The subject I liked most was JavaScript because I used to understand every code. I used to understand every programming which is done in that, and I really enjoyed doing the practicals. Okay. और Java. what else? JavaScript को छोड़ के what else? There was C++ also because it was similar to JavaScript, and since I knew C++, I also could cover up C since it is similar. So in So which since you have subject you given me made your the project? I'm sorry. Sir, 1 minute. हाँ जी. Yeah. Since you had given me Java was your favorite subject, tell me why Java is called as portable language. सर उसने JavaScript बोला हाँ लेकिन Because हाँ JavaScript बोला लेकिन that is there in this only. So why Java is called as portable language? because it can be used in the program can be the code can be used in every field Everywhere, or aspect. yes, but why it is there? What is the technology behind that it is portable? All programming language should be there by we can put it on any machine and it should run. So why it is called, and what is the meaning of portable? Portable in one sense it is that you can run it on mainframe, you can run it on mini, you can run it on PC. Okay. But in context to Java. Deepak, what is your favorite subject? Sir, my favorite subject is Java or mobile programming, advanced mobile programming. Advanced mobile programming, very nice. Good. So tell me the same question with you. Why Java is a portable language? So Java is portable language because it can be run on every different operating systems like operating system like Mac, like Windows and different types of operating system. और वो यूज करता है JVM और JDK, उसकी वजह से उसको रन टाइम एनवायरनमेंट जो इंस्टॉल होता है उसकी वजह से वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. You have to give the answer because of just-in-time compiler. Okay. Just in time, yes. Yeah, just-in-time compiler. Okay, it can be run on any of the operating systems, and that is why we say it is portable. You can run it on any operating system which is installed, which is having, maybe you can call it as you have written the program in English, but you want to execute it in Japanese language, you can execute it. The reason behind this is, Spurti, you also note it down, just-in-time compiler. अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर स्फूर्ति को. हाँ. Spurti, you said your favorite subject is JavaScript and C++, right? So in which programming language you made your project? I did it in Python. So why? You said you like C++ and JavaScript. Why not? Actually,
Python, I was unable to cope up during my college years in Python. I actually found it difficult. So during the lockdown, I did a Udemy course in Python. Okay. So it fell before. I did the course before I got the project. So my partner was also good in Python, so I thought maybe we can do it in Python so that I can know. So that I can know where I stand in that. Good. Okay. Good. Fine. Any comments, sir? आपको? Nothing. Okay. Isa, are you there? Yes, sir. Yeah. So which was your favorite subject during your set semesters? I did not have any particular favorite subject, but in my last semester, I think I was more interested in cyber law because there are like different acts in it, and it had a few subsections that made me keen towards it. So yeah, I think cyber law is the one subject apart from other languages that I found interesting. But for cyber law, you should not be doing MCA. I think yes, sir, but it's just it found it. Better Yes. that you utter this if this question is asked there. साइबर लॉ को छोड़ के बाकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी सब्जेक्ट है आपका, you can say that. Don't say green computing and don't say your cyber law, because these two are not having practicals. थोड़ा बहुत green computing. Yes, sir, वही मैं आगे बोलने वाली थी, but the only disadvantage is that since cyber law was not having any practical, तो I would have said कि मतलब दूसरा कोई language में से बोल दी. नहीं sir, no. Then why you said cyber law? Or second, when you said I think, then वो word निकाल दो. What is think? क्या होता है? You should be sure, right? कि Yes, sir. you said I think cyber law में मैंने ये acts वगैरह कुछ देखा, ऐसा मैंने सुना. So why think? I studied or some other word. Think वाला थोड़ा doubting जाता है ना अपने पे ही, Yes, sir. है ना, तो वो word use नहीं करेंगे. That's my suggestion. Okay, by sir. the way, it's just suggestion. Yeah. Okay, sir. Okay. Okay. Sir, I want to ask Sneha. Sneha, Yes, sir. explain in brief about your project. Okay, sir. So I had my project name was auction. No problem. Go ahead. Take your It time. was auction system. Basically, it was like a simpler version of OLX. So basically, you can sell your products as well as you can buy a product. Okay. Any in And, programming language you made it? It was in Java. Core And Java. front end was no, just Java. Okay. And backend? Backend was I guess Python, I guess. Okay. Anything you want to add in that? Okay, sir, आप कुछ भी नहीं बोलना. Let other comments on her. Yeah. Other comments from the students only. हाँ, बताना जरा क्या wrong था. अच्छा, by the way, when I say wrong, आपको क्या लगता है स्नेहा? Absolutely fine to improve, right? Yes. है ना, तो nothing like right or wrong. क्या mistake था? N1 से I'll give an opportunity first to Rishabh. उसने जो बताया उसमें एक आधा दो मिस्टेक मेजर था. Can you please share? ऋषभ, कुछ पॉइंट आउट लगा आपको? नेक्स्ट ईशा. दीपक, तू नहीं बोलना. ईशा. Yes, sir. I think the backend part. हाँ. The backend part. तो उसने She क्या said बताया? Python. Python. तो ईशा, Python is a front end, right? Yes, sir. Oh, and backend जब भी मैंने पूछा तो you took time. And you say I think. I think it was. I think नहीं होता है. Okay. तो That means you have not put your efforts in that project. हाँ, ये समझता है किसी से खरीदा है. हाँ.
ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे फ्रंट एंड बैक एंड की लिस्ट बता दे वापिस जरा। कौन बताएगा? स्फूर्ति आप बताओगे फ्रंट एंड और बैक एंड की लिस्ट? सुनना एवरीवन प्लीज। Front end, you can use Java, Python. For back end, sorry. ASP.NET। Yeah, and for backend you can use PHP, CSS. नहीं, CSS इज नॉट बैक एंड। और बताना। गुड, यू शेयर्ड। बैक एंड सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 2 में था DBMS। हाँ, सेमेस्टर 2 में था DBMS। So MySQL, MySQL भी था। MS SQL, Oracle, MS Access, चारों में से एक भी नहीं बताया स्फूर्ति बैकएंड। एंड CSS बाय द वे ना फ्रंट एंड ना बैक एंड, बट यू कैन यूज इट अलोंग विथ फ्रंट एंड। CSS से आप फ्रंट एंड में कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, राइट? डिजाइनिंग में इट्स कॉल्ड स्क्रिप्टिंग वगैरह। ओके, तो बैकएंड का लिस्ट स्नेहा, एवरीवन बैकएंड Please, और फ्रंट I would एंड request everyone, please write it down these things. फ्रंट एंड बैक एंड की लिस्ट बना देना। एक गूगल करोगे तो लिस्ट भी मिलेगा, बट स्टिल ये होना चाहिए फ्रंट एंड बैक एंड। बहुत इंपॉर्टेंट स्नेहा, थैंक यू फॉर गिविंग रॉन्ग आंसर सो दैट एवरीवन गेट्स क्लियर। आई रियली अप्रिशिएट। गुड, एब्सोल्युटली फाइन। प्रोजेक्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जा स्नेहा। क्या करेगी तू? जूम ओपन करना और खुद का रिकॉर्डिंग करना। खुद का रिकॉर्डिंग करो और 3 बार 4 बार, जब तक आपको नहीं लगता है कि आई एम परफेक्ट। कोई सीख के नहीं आया है। एवरीवन हैज डन इम्प्रूव्ड वर्जन अपने अपने हिसाब से। मिरर के सामने खड़े रह जाओ, लेकिन मिरर का एक प्रॉब्लम है कि रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना। जूम में मिरर भी मिल गया, रिकॉर्डिंग भी हो गया, राइट? एंड क्रिस क्रॉस अपने फ्रेंड को बोल सकते हो जूम ओपन करके, वो सुनेगा, नहीं तो आप रिकॉर्ड कर लो। इफ यू वांट एनी अपना हेल्प चाहिए मेरा सर का, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर दो, चलेगा। बट रिकॉर्डिंग एक बार सब लोग करना। आफ्टर दिस 1 more प्रिपरेशन एंड देन आप करना। यस सर, यू कैन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवन। दीपक को, किसको बाकी है? श्रेया को बाकी है। श्रेया को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। नहीं, एक आया ना? एक आया। Yeah, who are the other 3? Those who are not फिर बात on video screen. Okay. One is Akshit, one is Divya. Who is the third one? रोहित आया अभी। रोहित अभी आया। Okay. 1 second, sir. हाँ, मैं तब तक एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सो दीपक, व्हाट्स योर पेरेंट्स आर डूइंग? Sir, my parents, I have only one parent, that is my father. My mother passed away 5 years ago, and my father is doing. It's all right, sir. It's totally fine. And my father is doing astrology, like karma kand, puja path, and वगैरह वगैरह, sir. And what do you want to say about your father's profession, or about his character, or about anything? His character is excellent and his profession is also excellent. He is very good, sir, like sanskari pitaji, like Okay. person. Wow. That's why he is totally good, sir. Okay. And why you want to do MCA, Deepak? So because MCA gives better opportunities to jobs, like it can give jobs to government and private sectors. Like we can go in government or private sector, and it will more give me benefits. Like I have learned, and I am from IT field, so it more excites me that I should learn from there. That's why I do MCA. I like MCA. नहीं, second answer I am not happy. Let me ask someone else. Spurti, why you want to do MCA? Since our future is going to be in IT only, and since I have a IT background, since I've done BSc IT, so I think MCA, doing my post-graduation in MCA is going to help me a lot. MCA will give me a lot of opportunities, and I can have a very stable career in the IT field in the future. Okay. Rohit, why you want to do MCA? Mute हो, आप Mute. Sir, because after BSc IT, this is the only
postgraduate course which offers lot of opportunities, and it can also I'm also looking for a job called as data scientist that Okay, take your time, no issue. and I'm also passionate about coding, so that's why. जो लास्ट में बोलना था वो पहले बोलना था. वो पहले बोलना चाहिए. अच्छा, और बाय द वे द मोमेंट यू सेड ना कि दिस इज द ओनली प्रोफेशन, आई मीन क्या बताया आपने, दिस इज द ओनली कोर्स आफ्टर बीएससीआईटी, और अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और अगर मैं एमसीए नहीं है ना तो तेरी हालत खराब. Maybe I am MSc IT followed by PhD and I am the most successful person in my college, and you are telling me that MCA is the only. So do not use these words. And again thank you for saying सबको एक open up हुआ रोहित, this is very important, and you require some. This is one of the only मत बोलो, one of the yeah. मुझे एक आंसर नहीं, तीनों में से एक चीज मुझे मिसिंग दिखी. एमसीए गिव्स द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट. करेक्ट. जब भी मेरे एंजेलिना स्टूडेंट है, आप में से किसी ने देखा भी होगा, क्लास में आती थी, सी इज योर 1 year सीनियर. एंजेलिना स्टूडेंट सेंट जेवियर से है. जब भी उसका सेमिस्टर 2 चालू हुआ, ट्राइमिस्टर पैटर्न है केजे सोमैया में, एंड सी कॉल्ड मी कि सर मुझे प्राइवेट ट्यूशन चाहिए. आई सेड व्हाई, यू ऑलरेडी डिड इट. जावा मैंने कराया है, व्हाई आर यू अगेन वांट टू लर्न. सी सेड सर हमने जो बीएससी आईटी में किया था वो यहाँ मेरा 1.5 यूनिट है, बाकी 3.5 यूनिट इज कंप्लीटली 1 level अप. नाउ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सो दैट एक सीधा स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर डेप्थ है सब्जेक्ट में. डेप्थ, यू हैव लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यहाँ जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीए में सीखेंगे, इट्स अ डेप्थ, ह्यूज डेप्थ, डिटेल्ड वर्ड. I can explain this with the example. Depth का मतलब आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. ओके, 2 दिन पहले मंगलवार था. ओके, एंड मैं सिद्धिविनायक गया था, समझो, या आप सिद्धिविनायक गए, और आपको इतना टाइम नहीं है कि लाइन में खड़े रहोगे. तो आप क्या करोगे, बाहर से दर्शन करके आओगे. वहाँ पे बाहर से ही मंदिर के उधर पैर छू के आ जाओगे करके, और जो लाइन में खड़ा है वो 2 घंटा लाइन में खड़ा रह के अंदर जाके भगवान के दर्शन करके आएगा. आपने सिद्धिविनायक के गेट के दर्शन करके आपने अपना मन बना लिया. ये जो बीएससीआईटी में जो सब सब्जेक्ट किया है ना, वो बाहर से दर्शन करने जैसा है. इट इज जस्ट टचिंग द 5% ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट द इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट. वेरी वेल. ओके, करेक्ट. सो इन डेप्थ इट इज देयर. आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वापस से एक सब्जेक्ट रहेगा एमएससी में, वेदर इट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी. व्हाई आई एम टेलिंग प्राइवेट, बिकॉज़ सर जस्ट नाउ सेड सोमैया इज नाउ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. So whether it is Mumbai University, deemed to be university, or private university, they will not change the subject. They can change the contents. They can change 1 or 2 chapters here and there, but the subject will be there. And if you just see, now no one is reading Roger Pressman software engineering के लिए. Software engineering के लिए once upon a time Roger Pressman was the Bible. Can you tell me which is the best book to study, and how many normalization this are there, levels are there for normalization? I would say Sneha. No idea. म्यूट है स्नेहा, ठीक है. हाँ, लेकिन फिर भी उसका समझ में आ गया. Rishabh. Okay. Rishabh, how many levels of normalization is there? You have studied. Isa. ईशा, नाउ आपको पूछा सर ने. Don't be surprised. I am a maths teacher. Yes, I know. But I am myself a computer masters. हाँ. So, हाँ. या ईशा. रोहित. सर 3rd नॉर्मल फॉर्म तक है, उसके आगे कुछ नहीं है। 4 है सर, और भी ज्यादा शायद 2 है, मेरे को ज्यादा अच्छा पता नहीं, पर दीपक 2 कितना है बोलो। ये सब चीज पढ़ना है ना, और पढ़ना है। आप किधर भी किसी को भी पूछोगे ना तो आपको डीबीएमएस के लिए कोर्स बताएंगे, बाकी ये XYZ नाम बताएंगे, फॉरेन ऑथर्स के नाम बताएंगे।
सी प्रोग्रामिंग के लिए आपको फॉरेन ऑथर्स के नाम बताएंगे. Okay, whereas very good books are available by Indian authors. Bipin Desai. Okay, database, DBMS. You study that and it is equivalent to, अगर आपने एक पढ़ लिया ना वो, it is equivalent to 2 years का मास्टर्स आपका. थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद में रोहित BCNF है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म. उसके बाद में आता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद में फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म. Why I am giving all these details? ये सब चीज आपने नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, लेकिन आपको मास्टर्स में ये सब चीज सीखना पड़ेगा. ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको सीखना पड़ेगा. देन एंड देन ओनली यू दैट डिग्री इज वर्थ फॉर यू. सो इन डेप्थ जो सर ने बोला ना, उसको मैंने डिटेल में जाके आपको बताया कि इन डेप्थ का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डेप्थ इन दैट. एंड रोहित, यू सेड डेटा साइंस, पता नहीं वो आपके लिए डैमेज करेगा क्या, आई डोंट नो, वो आपको घुमा सकते हैं कि देन व्हाई डोंट यू डू एक 1 ईयर का और समथिंग डेटा साइंस, और मे बी उनके पास है डेटा साइंस का, वो उधर मार्केटिंग चालू हो जाएगा. हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी दे विल से कि डेटा साइंस का ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स यू हैव MCA में, बेटर है कि आप डेटा साइंस का स्पेशलाइज कोर्स कर लो. सो आई डोंट नो, आई एम जस्ट पुटिंग अ वन थॉट अक्रॉस यू पीपल, यू डिसाइड. व्हाई डोंट वी से समथिंग लाइक कि लेट मी कंटिन्यू विद द, आई मीन लेट मी क्या बोल सकते हैं उसको, ब्राउज, लेट मी ब्राउज ऑल द सब्जेक्ट्स और लेट मी learn all the subjects in the MCA and then decide in which career I want to finalize myself, you know. कि मुझे नहीं पता MCA का सारे सब्जेक्ट्स तो मुझे सीखने, तो उसके पहले मैं कैसे बताऊं. मेरा BSc IT का नॉलेज से मैं डिसाइड करूं कि मुझे डेटा साइंस करना है, कि मैं MCA का नॉलेज से डिसाइड करूं, राइट. तो बिफोर MCA किसमें करियर बनाऊंगा, आई डोंट नो. दैट कुड बी डिस्कवरी फॉर मी, कि मैं देखूंगा, जितने सब्जेक्ट्स देखूंगा उसमें से कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, एंड मे बी आई डू दैट, ऐसा कुछ. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में आ रहा है. एनीवन हैज डन इंटर्नशिप? अच्छा, ओके, ऐसा तो मुझे नहीं लगता. Deepak, you said that about your father, what sir asked you, and you said, then the next question could come up. Where do you would prefer to settle down after doing your MCA if you get admission and if you clear your degree? Sir, I want to settle in Mumbai only, sir. I don't want to go outside, or I don't want to go abroad to study further or to do job. Okay. So the similar kind of answer is expected there also. Okay. Because they just want to see आप 1 साल का कोर्स करके आप भाग तो नहीं जाओगे. आपका अगर फ्यूचर में बाहर जाने का प्लान से और आप 1 साल का फीस भर के इधर MCA कर रहे हो और दूसरे साल आप उड़ गए, तो उनका दूसरे साल में वो सीट का पैसा जाएगा. See, I am just linking everything with each other. Why this question they will ask you? They will not ask you whether you are inclined towards further studies, ये वो करके, वो आपके मुंह से indirectly निकलवाएंगे करके. Where do you see yourself or where do you want to settle and kind of thing. भले आपके दिल में रहेगा कि मेरे को 1 साल करना है, 1 साल के बाद में मुझे उड़ना है करके, 16 साल का एजुकेशन करने के बाद, but never ever open up because they are strangers for you. Never open up. जैसे रोहित ने बताया कि डेटा साइंस का उनके पास खुद के पास अलग से कोर्स है. ओके, MCA का तो वैसे भी उनका भर जाएगा, डेटा साइंस में नहीं भरेगा, तो आपको वहां पे मार्केटिंग करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे नहीं मिला, अभी आप डेटा साइंस करो. So that should not be, our talk should be very general. Yeah, रोहित, आपका बैकग्राउंड भी एकदम डार्क है. हाँ. So I hope you will be prepared for tomorrow. आप सब लोग अपना Zoom में बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कैसा है. The light should be front of your face, right? Face पे लाइट आना चाहिए. That's important. अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं डेफिनेटली सूटेबल जगह पे नहीं बैठा हूँ, because I don't have to take the lecture. नहीं था, और मेरे पीछे कुछ चल रहा था करके मैं ऐसा बैठा हूँ. Otherwise if I am taking the lecture, मैं लाइट के सामने बैठूंगा. Even Spurti, your this one is dark. Okay, so make sure that yeah. दिव्या, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं? Yes, sir. Divya, you have graduated 1 year back. That is 2020, and then this is 2021. 1 year क्या किया आपने?
Sir, Now seriously this answer talking, is consider कि I am taking your interview. Either you will be selected or you will be rejected in the NMIMS. ऐसे answer देना. yes, sir, I was learning few online courses. Like Like I have learned Python, even I've learned Java also online. okay. Okay. So there was no future. Means I wasn't planning MCA. It just happened like suddenly. Let's do MCA. Okay. Okay. So in the beginning, during your final year, you were not, I mean, interested for No, MCA sir. later on. Yeah. Okay. Perfect. Okay. Okay. Yes. Now, simple question could be asked that from where you got the information about NMIMS. Shreya, answer do. And then Rishabh. Sir, I had read a few, I had done research between that is what is better, MSCIT or MCA. So I had read through many, discussions on Quora and all that. So I had searched the colleges, best suitable colleges for MCA. So I had come to know about NMIMS through Google. Can I give the feedback for your answer? Yes, sir, sure. Yeah. Why you should say इतना घुमा फिरा के you are a UPG student, आपके सामने है कॉलेज, NMIMS यूनिवर्सिटी आपके सामने है. आपको આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે આંખમાં ચોરીને ગામમાં ગોતવા આયેલા એના જેવો જવાબ આપ્યો તમે. Okay, I have studied in SVKM UPG college and I know this is one of the best colleges in the suburbs. I know it very well. Okay, while traveling from my home to my this is my on the way this is falling. પછી ભલે ને તમે ઈ રોડ થી જતા હો, લિંક રોડ થી જતા હો કે ના જતા હો, ઈ કોણ જોવા જવાનું છે તમને? તમને પૂછવાના નથી કે તમે ક્યાં રહ્યો છો ને તમારું એડ્રેસ આપો ને કેવી રીતે જાઓ છો. તમારું વેહિકલ હોય તમે ત્યાંથી પણ જઈ શકો છો. And like of course आपको कोई स्टूडेंट नहीं पता तो ठीक है. अभी मेरे को ये क्वेश्चन आया तो मेरे को सीधा ऐसा दिखता है रिद्धि पटेल एंड सागर पटेल. सागर was from Thakur College and he is doing. So I'll say that Sagar Patel is one of our right now NMIMS MCA student. He is my society friend and he is just now doing. खत्म साहब उनको इतना नहीं पता. Third year. हाँ. He will be in the third year and he has also done this MCA course. मतलब कितना अच्छा लगता है कि उनको बताया जाता है कि मेरा एक नेक्स्ट डोर नेबर या समवन सोसाइटी फ्रेंड और फैमिली फ्रेंड इज इन योर कॉलेज डूइंग द सेम कोर्स. मतलब उनको क्लियर कि ये बंदे ने सब कुछ देखा हुआ है, उसको पूछा हुआ है, फिर भी यहाँ एडमिशन लेने आया. मतलब यस ही हैज अ ट्रस्ट एंड दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ. जब भी मैं इंक्वायरी में बैठता हूँ मेरे को कोई स्टूडेंट आके ऐसा बोलता है कि सर आपका अभी रिसेंटली 12th का एक इंक्वायरी आया कि अनुष्का नाज ने मुझे आपका नंबर दिया. तो मेरा ऐसा लिटरली बॉडी लैंग्वेज हैज बीन चेंज्ड यू नो कि यार अपनी एक्स स्टूडेंट ने उसको रिफर किया तो ये बंदे को 100% हैंडल करेंगे. इफ आई एम बिजी आई सपोज टू से कि आपको मैं बाद में कॉल करता हूँ. नहीं ठीक है मुझे हैंडल कर रहे थे बिकॉज ही केम फ्रॉम रेफरेंस यू नो. या सर आप कुछ बोल रहे थे. Yeah, you should not say about this. I read in this. ये बोलो ठीक है, but इससे ज़्यादा वजन आपका ये गिरेगा. You say one of the person from my society has already done MCA from your college. They don't know all the students' names and all these things. Okay, they are not going to ask you कौन सा बंदा था, कौन से साल में बोल किया. दो. हाँ एनीथिंग. अरे कुछ भी बोल दो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम बोल दो चलेगा, जो अभी आपके साथ में बेंच पे साथ में बैठती थी करके उसका नाम बोल दो, कोई फर्क नहीं है. फॉर्म जो भरा था ना उसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा था. हाँ. तो फॉर्म के अंदर के आपको कैसे पता चला एनएमआईएस के बारे में. तो आपको तो वो अच्छा हुआ आप लोग बोलते तो मैं लिख के देता था, नाम भी लिख के देता था. अपने सारे 5 स्टूडेंट्स उसमें है. इवन भूपेंद्र सर काफी स्टूडेंट्स को जानते हैं. हाँ, बट उसमें मेरे काफी स्टूडेंट्स है यूपीजी में से है जिन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया है. श्रेया यू मे बी नोइंग चिंतन राइट नाउ ही इज डूइंग. प्रीति चौहान नो आइडिया. चिंतन बुट्टा नो. काजल गिरनारा नहीं पता. ओके. बस स्टॉप के ऊपर उनके फोटो लगे हुए थे जब उन्होंने सैप किया था तभी इनके साथ में.
नहीं मतलब मैं सर वो कह रहा था कि उधर हम लोग ने जो भी हम लोग ने लिखा है, गूगल लिखा है या और किसी रास्ते से लिखा है, वही इंटरव्यू में भी वही बोलो, फिर वही बोलो, हाँ। कि वो टैली करेंगे, हाँ। फिर वो Yes. टैली करेंगे। आपका चेंज हो रहा है स्टेटमेंट के क्या है जो अभी मैंने सर मैंने बताया। कोचिंग लिखा है, क्या लिखा हाँ है? बोले। मैंने कोचिंग लिखा है। हाँ तो गुड ना, इट्स ओके। मैंने भी कोचिंग कोचिंग से मिला, पता चला उसको ऐसा, दैट्स ओके। दे आर ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल। का है कोई ना कोई स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस में जाता है फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी क्लियर। आपको पता है हाँ, टाइम का एक एड आता था टीवी पे हाँ, कि विच इंस्टीट्यूट यू डिड, पीपल यूज्ड टू से टाइम टाइम टाइम, ऐसा ऐड डाला था उसने। दैट्स हाँ। ओके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे इसको पूछना एक क्वेश्चन। स्नेहा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आई डोंट नो, ये क्वेश्चन नहीं है बट ऐसे ही पूछता हूँ। Okay, sir. My name is Neha Jana. Currently, I'm pursuing BSc IT from Manshamda Saraf College. Uh, I like singing normally, and also I like making friends. My favorite subject would be computer networking and Java. Okay. Yeah. Good. Would be बोला शायद आपने, क्या बोला? My favorite subject would be कि could be? नहीं, my subject would be बोला मैंने हाँ, शायद। कुछ तो हाँ, ऐसा बोला। हाँ। yes. ये नहीं आया, कार्तिक नहीं आया। कार्तिक कंवल नहीं आए। कार्तिक कंवल सर नहीं, शायद वो उसके डैडी के साथ कुछ काम था, उसको कुछ ऐसा बोला। अच्छा, उसको रिकॉर्डिंग पूरा स्नेहा एक कॉल करके उससे जरा क्लियर करना, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, उसको बताना मस्ट, वरना वो भी उसको क्या समझेगा, एक फॉरवर्डेड मैसेज समझ के वो देखेगा नहीं, हाँ सर, ठीक है है। ना। उसको बोलो पेशेंस के साथ, बीच बीच में हमने कुछ टाइम पास कर लिया तो वो रिकॉर्डिंग में बोरिंग लगता है किसी को, बट देन होल कॉन्टेक्स्ट इज क्या, प्रिपरेशन, मिरर प्रिपरेशन। तो उसके साथ सेपरेटली एक उसको बोल, ये देखने के बाद आप दोनों कर लेना इंटरनली, कवल के साथ भी आप हाँ तीनों सर, इंटरनल करना एक। या Isa, you are too much tensed. No sir. Yeah. Okay. So, any questions from your end? या नाउ सर कुड यू प्लीज लाइक आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें लाइक कुछ क्वेश्चंस में कैसे लाइक क्या बोलना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है? हाँ बोलिए ना, स्पेसिफिक पूछिए। You are free to ask. नहीं, एक काम जैसे करो, आपने एक मिनट सर, एक मैं ऐड करता हूँ। ईसा तू सीधा भूपेंद्र सर को पूछ, यू विल बी एन इंटरव्यूअर एंड भूपेंद्र सर विल बी स्टूडेंट, कम ऑन। ओके सर। एक क्वेश्चन पूछ, जो तुझे डाउट है वो पूछ सीधा, एब्सोल्युटली फाइन। Why do you want to do MCA? So, question: Yeah. Why do you want to do MCA? हाँ सर। Yeah, I want to explore all the subjects in depth, okay, which I have studied in my BSc IT, all the 6 semesters, and I have the passion for programming, and this is the subject after graduation which I can do, and where I can explore my coding, and even I can study in depth all the subjects, including data analytics subjects also. Okay sir. Everyone, English is not important, your confidence is important, absolutely fine। दीपक ने बीच में हिंदी बोला, is absolutely fine, try to understand। Yeah, that is not going to make any difference for you. Yeah. Totally conversation Hindi रहे। Sir, I have a question. हाँ, किसको पूछोगे आप? सर को पूछो। Yeah, tell me, Spurti. Sir, tell us about yourself. So, like, what are the points that you're supposed to cover? As in, should we talk about career? See, not career and all these things. Tell me something about yourself. आपके career के बारे में नहीं पूछा है। Career तो आपको पता नहीं है कहाँ पे जाएगा। Okay. No, as in, should we say that we are focused or career oriented? मैं बताऊं? हाँ बोलो सर। Please पूछो मुझे। tell me about yourself. Okay, so my name is Pragnesh Shah. I stay at Borivali with my parents who are my health inspiration. They are 82 and we do exercise together.
Along with my parents, I have a beautiful wife who is my inspiration for learning new things. And I have 2 kids who are really enjoyable time together. This is about my personal life. At profession, I am running my coaching classes called Pioneer Education Center, and I teach at Pioneer Programming Languages. For me to make the career for the students and to get the job is my single mission for my life. I love traveling, and when I go for vacations, we go for double XL size के vacations. लोग डबल एक्सेल साइज के कपड़े पहनते हैं, मैं डबल एक्सेल साइज के वेकेशंस में जाता हूँ. डबल एक्सेल इन द सेंस लोग गोवा जाएंगे तो 4 दिन के लिए जाएंगे, हम 10 दिन के लिए जाते हैं. And it's not about the place. Even I used to go with native place in my village where we used to stay 10 days to meet the people, to know about their culture. That is my passion. Yeah. See, for you people, what you should be saying is, first thing, your name. Second thing, you have completed your BSc IT from so and so college. Someone said, Sneha said, I am doing my BSc IT. It is over now. Okay. So that should be there. I have completed my. Yeah, sorry, I am pointing out, but don't feel bad about that. Okay, it is for everyone. So yeah, so that should be there. Okay, that you are doing, so you have completed your this, and you have the what you say vision of doing in-depth further studies in the programming subjects. Okay. तो ये सब चीज बोलोगे ना, जनरल कॉमन है, बट ये बोलोगे तो उनको भी सुनने के लिए अच्छा लगेगा. मतलब कुछ दिखता है. अभी इंट्रोडक्शंस में एक अपनापन मैंने दे दिया आप लोगों को, मेरी पूरी फैमिली बता के, मेरा एक हैबिट. आपके लिए फैमिली तो क्या है, पेरेंट्स है, राइट? बट आपके लिए करियर है ना, तो कुछ गोल बनाया आपने, कुछ है कि भाई आफ्टर कुछ करना है मुझे, या मैं ये करना हूँ, ऐसा कुछ भी ऐड कर सकते हो शायद. About your family, where you stay. हाँ. So now I think roughly you have got the idea about your project part. They will ask you. Then you should be very firm. What is your front end? What is your back end? Okay. Yes. What was? अगर मेरे जैसा रहेगा तो आप बोलेंगे I and my partner did it. How much was your efforts? How many modules did you develop? अभी वो verify नहीं करने वाले हैं करके आपने कितना किया, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तभी पूछ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि आप कैसे आंसर कर रहे हो उनको. शायद से मेरे जैसा बंदा रहेगा तो पूछने के लिए पूछ लिया, मैं तो खाली आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, मैं रजिस्टर भी नहीं करूंगा उसको. और ये अक्सर होता है. व्हाट इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ क्यों पूछा जाता है पता है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, रियली टाइम पास करना होगा तो ही आएगा ये. बिकॉज ये क्वेश्चन कभी आता है व्हेन द इंटरव्यूअर वांट्स टू गो थ्रू योर सीवी, he is buying time for 4-5 minutes, and that is why he is telling you, tell me something about yourself. He is keeping you busy. आप अपना पक करते रहोगे, वो बिल्कुल कुछ नहीं सुनेगा. This is I am telling with my experience because I was there to recruit people and we had this. तो मैं हमेशा जब भी मैं पहली बार लिया तभी मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था, why we should be asking, अपने हाथ में सीवी है, बोलते हैं सीवी पढ़ने के लिए तेरे पास टाइम तो होना चाहिए ना, that is why we should ask this question. तो उसमें आप उसका देख लो, उसने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, कितनी जगह पे काम किया है. सॉरी, अगर बंदे ने 1 साल में 4 जॉब बदली किया है तो ये बंदा कितना भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए बहुत रिक्वायरमेंट रहेगा इस बंदे का, ओके, नीड रहेगा, फिर भी इसको सिलेक्ट नहीं करना है. क्यों? 4 कंपनी 1 साल में बदली करके आए, तुम्हारे यहाँ पे भी मेहमान बन के 3 महीने ही आएगा, 3 महीने के बाद में यहाँ से भी उठ जाएगा. So this all things we were also learning it and we were asking and we were going through the CV part and all these things. तो ये आपका जॉब नहीं है कि आपको ये शायद पूछेंगे, tell me something about that. Is why the question I had not put it, but I won't be surprised if that question comes also. मुझे अक्षित को पूछना है सर. अक्षित, can you tell me something about your project? So I did the project on online examination system using ASP.NET. नहीं सुनाई दे रहा है. So I had used front end as in ASP.NET and back end as SQL Server 2005. Okay, what else? थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है, बहुत डिस्टर्बेंस. तू कल इधर से ही करने उस टाइम पे नहीं चलेगा, उस टाइम पे नहीं चलेगा. चाहे तो मोबाइल का हॉटस्पॉट ले लेना. Okay, sure, sir. वाईफाई तो है उसके पढ़ाता पास. हाँ सर.
ये ऑडियो की प्रॉब्लम है, तू निकाल के बोल। और इतना ही बोलेगा क्या प्रोजेक्ट का? बता मुझे, व्हाट एल्स? I did my project for due to pandemic situations which had in the last 2 years for an online examination. Means we didn't have any other platform for doing it, so I made this project. और दैट्स इट? एक मिनट, मुझे किसी और को पूछना है। क्या 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 फीडबैक है आपका? ईशा, श्रेया? एक्चुअली मुझे भी इसी पे पूछना था कि लाइक फ्रंट एंड बैक एंड के अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन लाइक प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको देना चाहिए। तो चलो सर को पूछते हैं, सर को पूछते आपका हैं। फीचर क्या है प्रोजेक्ट का, आपका गोल क्या है प्रोजेक्ट का, ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट का? सर बताओ ना, आपको मैं पूछता हूँ सर, दैट विल बी मच बेटर। सर टेल मी योर अबाउट समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट सर। भूपेंद्र सर। आई हैड डन माय प्रोजेक्ट, अभी मैं नाम नहीं देता हूँ कुछ भी, XYZ नेम जो भी आपका रहेगा, ओके, अलोंग विथ माय पार्टनर, एंड द ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ दिस, द पर्पस ऑफ दिस स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट वाज सो एंड सो, ओके, जो भी आपका स्कोप रहेगा, तो that was the scope of the project, and there are 9 modules in the project, and myself I have done 4 modules or 5 modules, and the others are done by, and this project we had demonstrated, and we had completed all the validations in this, and even my coordinator and the project Viva teacher had appreciated my project during the Viva. Because of all the validations were done in this. अभी आपको अगर आप देखो, ये फेंकना मत, हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। आप जैसे ही वैलिडेशन बोलोगे वो बोलेंगे हाउ मेनी मिनिमम कैरेक्टर्स आर अलाउड फॉर ईमेल। अगर आपने ये बोल दिया तो मेरे जैसा कोई रहेगा तो सीधा पूछ लेगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आई कैन पुट इट फॉर माय ईमेल, मिनिमम कैरेक्टर्स। तो उधर ही मेरा पोल पकड़ा जाएगा अगर वैलिडेशंस किया है तो। किसी को पता है क्या गूगल कितना अलाउ करता है? एनीवन? सर मैं तो .NET प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो हमको उधर आ जाता है एक स्पेशल वैलिडेशन है जो ईमेल का वैलिडेशन खुद कर लेता है। और सर जावा में भी मैच ईमेल करके आता है, उससे भी हो जाता है। मेरे प्रोजेक्ट में वही किया है। वो खुद नहीं, लेकिन कितने जन को मालूम है? मुझे तो ये खाली पूछना है कि कितने जन को मालूम है कि कितना कैरेक्टर्स होना चाहिए। अभी मैंने MSc का वाइवा लिया था और उसमें वो बंदे ने ईमेल आईडी 2 जन को छोड़ के 17 जन का वाइवा लिया, 2 जन को छोड़ के किसी ने वैलिडेशंस नहीं डाला उसमें। आप बोलते हो ना ASP में आ जाता है, जावा में आ जाता है, दे हैव नॉट डन इट। उनका ये छोड़ो, उन्होंने सैलरी डाला हुआ था, सैलरी में मैंने बोला -3000 डालो, एड्रेस में डालो हैश और क्वेश्चन मार्क, ले लिया, रिकॉर्ड सेव। करेक्ट। So your validation should are very much। अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछा है और गलती से आपने जो मैंने बोला वैसा बता दिया तो आपको पूछेंगे कि how you did this validations, how you did this validations करके। फिर वैलिडेशन शुड इंक्लूड, बराबर है सर, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है प्रोजेक्ट का। हाँ, और सर ने फ्रंट एंड बताया, बैक एंड बताया, मॉड्यूल्स बताए, पार्टनर बताया, एवरीथिंग कवर हो गया उसमें, राइट? और डू नॉट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग फंक्शनैलिटी। हेलो, हाँ, फंक्शनैलिटी मत एक्सप्लेन करो, राइट? सो दैट्स इम्पोर्टेंट। आपके मॉड्यूल्स एक्सप्लेन मत करो उनको, खाली कितने मॉड्यूल्स थे, आपने कितना किया, ओके, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू अगेन, आई एम रिपीटिंग इट, ये सब जो आपको पूछ रहे हैं ना, वो माइंड में डिसाइड कर रहे हैं आपका बॉडी लैंग्वेज देख के इसको एडमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यस, योर बॉडी लैंग्वेज विल बी वेरी मच। आप आंखें, जैसे अक्षित और स्नेहा ने एक आध क्वेश्चन में आंखें ऊपर की थी करके कि भाई हाँ सोचने के लिए, अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। मैं अक्षित को वही बोलने चले वाला था, तो ऊपर क्यों देखा? इट शुड बी, आप अपने कैमरा में देखोगे, एक ही कैमरा में देखो, योर आईज शुड बी ऑन द कैमरा, नॉट एनीवेयर एल्स। और मुझे आप फोकस करके उनके सामने बैठ के ध्यान जवाब दोगे, नॉट इधर उधर देख के, या तो फिर, और जनरली हमारी आदत होती है जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा ये सब चीज है ना, अपना बॉडी लैंग्वेज, हाथ को नीचे कंट्रोल करके रखो।
ओके, एक तो पंखे के ऊपर देखना नहीं है, पंखा कुछ हमको हेल्प नहीं करने वाला है। एंड मुझे ये सब में दीपक थोड़ा कॉशियस, ओवर कॉशियस लग रहा है क्या सर? ओवर कॉशियस नहीं, नहीं, मुझे रोहित सोरन थोड़ा सा नर्वस लग रहा है। नर्वस लग रहा है, बिल्कुल वो भी मुझे नहीं दिखा। बैठा है वो। और दीपक आपको एकदम अलर्टनेस में बैठना चाहिए, जो पीटी करते थे ना स्कूल में, पीटी में कैसे बैठते थे अलर्ट में, वैसे बैठना चाहिए। एंड योर या सॉरी बट दिस इज ऑल थिंग्स विच विल इम्प्रूव योर दिस। अभी देखो आप बैठ गए तो आपका लाइट भी आ गया। मुझे ये ईशा एकदम नेचुरल बैठी है, ऐसा दिख रही है। स्फूर्ति भी नेचुरल बैठी है, एकदम अपना जो नॉर्मल वे हम बात करते हैं आमने सामने। इवन स्नेहा ऑल्सो लोग बराबर दिख रहे हैं। मुझे पता नहीं दीपक का थोड़ा ऐसा लगा ओवर कॉशियस बैठा है क्या, ऐसा मुझे थोड़ा दिखा। नहीं ना, परफेक्ट, एकदम न्यूज रीडर बन गया एकदम। गुड बट गुड। अच्छा ईशा, यू हैड सम अदर क्वेश्चंस? या और स्नेहा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है हाँ, ऐसा मतलब आपका ऐसा। हाँ, आई डोंट नो आपने कैसे मैनेज किया आज के दिन। इट्स ओके। हाँ सर, आई फिक्स दैट। हाँ सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। मतलब हम लोग जब भी इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो इंटरव्यूअर पूछता है ना कि कोई क्वेश्चन है क्या, सो हम लोगों को क्या हाँ बोलना है ना बोलना है? अगर हाँ बोलना है तो क्या क्वेश्चन पूछना है? यस, गुड क्वेश्चन। पूछ सकते हैं NMIMS के बारे में। वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं पूछेंगे वो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड। Let me tell you, I will tell you the reason behind this, or I will tell you the reason behind something. Tell me something about yourself. आप सब ने ग्रुप के ऊपर मैसेज पढ़ा था, सबको 12 तारीख को बुलाया है और सबको 3 और 3 6 घंटे के टाइम में खत्म करने का है। खाली ये आप नहीं है, यहाँ पे जो 9 जन बैठे हैं वो नहीं है। जितने जन ने अप्लाई किया है उनको ये लोग एक ही 12 तारीख को खत्म करने वाले हैं। ओके, सो दे हैव maybe they have a pool of people but they are going to finish it। और एक को 50 आदमी भी दिया है तो सोच लो 50 आदमी को 300 मिनट में खत्म करना है, 6 घंटे में। 3 घंटा सुबह में, 3 घंटा दोपहर को। 300 मिनट में 50 बंदे लोग को अगर मेरे को इंटरव्यू लेना है तो मेरे पास टाइम कितना है आपका इंटरव्यू लेने के लिए? 6 मिनट्स, लिटरली 5 मिनट्स। 1 मिनट तो आपका ज्वाइन करने में, नेक्स्ट ये वो करने में जाएगा करके, एंड ऑल दिस थिंग्स विल गो। सो एक जन रहेगा जो वहां पे कंट्रोल करता रहेगा, बाकी के 12 जन रहेंगे जो इंटरव्यू लेने रहेंगे, तो वो उसको सबको उधर एंट्री देते जाएगा। जैसे आप वैक्सीन लेने जाते हो वहां पे एंट्री भी देते हैं वैसे। सो समवन विल बी देयर हु विल बी कंट्रोलिंग योर दिस वन, बट द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द इंटरव्यू ही इज नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर देन 5-6 मिनट्स आपके साथ में। लेट अस टॉक प्रैक्टिकल। ओके, स्टिल सर पूछा तो क्या बोल सकते हैं ऐसा, जस्ट मुझे भी एकदम आ गया। नो क्वेश्चंस। ओके नॉट टू आस्क अबाउट कि व्हेन द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड और व्हाट, ऐसा कुछ नहीं। नो वो उन लोग को भी पता है कि आप सब पास ही होने वाले हो रिजल्ट में, इसीलिए तो वो लोग रिजल्ट के पहले ही आपका इंटरव्यू और एडमिशन ले रहे हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर उन लोग का मॉक टेस्ट ड्रॉप हो जाता है, समझो बाय चांस, तो वो आपको बोलेंगे 20 तारीख तक पैसा भर दो, 8 दिन का टाइम देंगे। अच्छा, ये आपको इम्पोर्टेंट है हाँ, यस, कि पेरेंट्स को आप बता के रखिए। आप पेरेंट्स को बता दो, ये मेरे को लास्ट में बताने का था। यू शुड टेल योर पेरेंट्स माय इंटरव्यू इज देयर ऑन 12th। इफ आई एम सिलेक्टेड आई विल हैव टू वी विल हैव टू अरेंज फॉर द फीस टू बी पेड विद इन 8 days। कितना अमाउंट का जो लिस्ट आता है वो तो 18 तारीख को आता है ना, कि कब सिलेक्ट हुए। लिस्ट जो आता है हाँ कि कौन कौन सिलेक्ट हुए वो तो 18 को आता है ना। तो जब भी लिस्ट आएगा तो 18 के बाद। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी रिजल्ट आएगा आपका, मैं नहीं बता रहा हूँ 12 तारीख को आपको पता चलेगा, 18 को रिजल्ट आएगा तो आपको 27 तारीख तक 30 तारीख तक पैसा भरने को बोलेंगे। घर में बता के रखना है, हमारा अभी काम से है। बता के रखो यार, क्योंकि 1,80,000 अरेंज करना, अभी हर एक के पास बैंक में बैलेंस नहीं रहेगा, इधर उधर से एक बैंक में लाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। सो दैट थिंग यू टेल इन एडवांस टू योर पेरेंट्स। यस, अरेंजमेंट करके रखा है, वेरी परफेक्ट, वेरी नाइस, बट स्टिल वी हैव टू टेल टू अवर पेरेंट्स कि भाई मेरा फीस भरने का आएगा ये महीने के एंड तक, आखिर तक। एनीवन जिसने पेरेंट्स को नहीं बताया और ऐसे इंटरव्यू में जा रहा है? एनीवन फ्रॉम यू? नहीं ना, गुड, ओके, मतलब क्लियर है, पेरेंट्स आर क्लियर है, ओके, गुड। अच्छा सर हाँ
Suppose वो लोगों ने क्वेश्चन पूछा maybe about favorite subjects, so they ask a question about that subject, and अगर नहीं आया, I mean answer नहीं पता, तो क्या बोलेंगे? मतलब you mean to say कि जावा अच्छा, आपका मुझे फेवरेट बताओ आप सब्जेक्ट क्या और बोलेंगे? जावा आपको मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं आंसर आता है तो आप क्या करोगे? ऊपर पंखे की तरफ देखोगे, फ्रैंकली बोल्डली बोल दोगे मुझे नहीं आता है, क्या बोलोगे? Yeah, You tell me what you will say. मुझे नहीं पता. Sir, I don't know this answer. That is why I want to do MCA. and थोड़ा सा it's जोक भी कर लो, हंसा भी दो उनको. and it's open, it's हर एक को स्नेहा, हर एक हंसने चीज में भी नहीं आप, आती. सॉरी ईशा, हंसने में भी आप रेसलिंग लगा रहे हो करके. नहीं मैं ऐसी थी कि हंसती नहीं, it's see absolutely okay, नहीं आया, you can upfront say that नहीं आया. You can say I don't know this and all these things I want उसकी to learn it in जस्टिफिकेशन depth. करने की स्टोरी मत बनाओ बाबा प्लीज. हाँ, क्यों नहीं आया? फेकम फेक मत करो, नहीं आता है तो हाँ। फेकम फेक मत करो उधर. बस. मेरा इतना ही बोलना है. Maybe Answer, because of, हाँ, like the email जिसमें हम लोग को call letter आया था, उसमें ये एक point था where they asked us to reconfirm the eligibility criteria as per the information handout uploaded. हाँ. तो reconfirm as in क्या, like reconfirm हमें फिर से confirm करना पड़ेगा उधर? नहीं, रिकन्फर्म बोलेगा तो आप लोग वापस से एक बार देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. आपका मैथ्स होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, आपका अभी तक मतलब के सब सब्जेक्ट्स क्लियर है, ऑल सेमेस्टर्स आर क्लियर. वो श्री इज नॉट एलिजिबल सर, रिकन्फर्मेशन उसका बेस्ट एग्जांपल. हाँ, रिकन्फर्मेशन में है एक स्टूडेंट है जो उसका 6th सेमेस्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. उसकी यूनिवर्सिटी में सेम 5 कंप्लीट हुआ अभी हमारे साथ, सेम 6 अभी चालू हो रहा है उसका. सेम 6 उसका चालू हो रहा है अगस्त से. वाईएम. तो वो उसने भी फॉर्म भरा था होपिंग के दोनों साथ में पैरेलल कर लेगा, बट ये नहीं होगा. अभी वो इंटरव्यू को जाएगा, इंटरव्यू को बैठेगा तो भी उसका इंटरव्यू में कितना भी अच्छा आंसर देवे, but since he has not completed his graduation, he will not be allowed to take admission. So this reconfirm we don't मेरे have. को एक क्वेश्चन आना चाहिए था, but everyone is confident कि हम लोग एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे. So that is a good sign. ये तो कोविड वाला बैच है ना, रियलिटी में तो यू डोंट बिलीव माय अपना एक See, स्टूडेंट है. let me tell you, this has happened with my one of the student. इन लोग का SVKM का NMMS का ऐसा ही है, रिजल्ट आने से पहले ही वो लोग आपका एडमिशन प्रोसेस चालू कर देते हैं और आपको बोलते हैं फीस भर दो. अभी फीस भरने के बाद में बैच भी चालू हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक. लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया था, रिजल्ट तो क्या एग्जाम भी नहीं हुआ था स्टूडेंट्स लोग का 6th सेमेस्टर का, और इन लोग का बैच चालू हो गया था. नाउ ये कोविड वाली सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन कोविड रेगुलर बैच में स्टूडेंट वाज अवेटिंग द रिजल्ट, ही पेड द फीस को रिफंड कैंसलेशन का जो भी पीरियड था, ओके, कूलिंग पीरियड, वो भी चला गया. आफ्टर दैट द रिजल्ट केम और रिजल्ट में इसको बोला गया कि यू आर फेलिंग इन वन सब्जेक्ट फॉर 6 मार्क्स. और द स्टूडेंट वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट. जैसे ईसा ने बताया साइबर लॉ, he had failed in cyber law, okay, and he gave it for revaluation. तो revaluation आते आते देरी हो गई और ये बंदे ने क्या किया था कि इसका रिजल्ट आया था तो रिवेल के लिए था, तो इसने पैसा नहीं भरा था. दूसरे वाले का दोनों किस्सा बताता हूँ. ये बंदे का रिजल्ट आ गया था तो इसने पैसा नहीं भरा था. इसने बोला आई विल टेक द एडमिशन आफ्टर आई गेट दिस एंड आई एम 100% श्योर कि मेरे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए. आई एम एक्सपेक्टिंग 55 प्लस आउट ऑफ 75 एंड व्हाई दे हैव गिवन मी ओनली 19 मार्क्स करके. सो दैट इज व्हाट हिज वंडर वाज देयर एंड ही डिड दिस. उसका रिजल्ट में उसको पास आया. बाय द टाइम इनका एडमिशन क्लोज हो चुका था. ओके, AICT में भले ही मुंबई यूनिवर्सिटी के दोनों कोर्स हैं, बट वन इज UGC, वन इज AICT. सो उन्होंने बंद कर दिया था, ये बंदे को नहीं मिला. और आज ये बंदा 2 साल पहले वाला बंदा है ये, आज वो MSc कंप्लीट करके बाहर निकल चुका है. ओके, दूसरे वाले बंदे ने लिया था एडमिशन और उसका फेल हो गया करके, उसको एक भी पैसा वापस नहीं मिला. उसको खाली जो भी डिपॉजिट था वो डिपॉजिट वापस मिला, क्योंकि इन्होंने बोला आप नहीं लेते थे तो हम दूसरे किसी को सीट देते थे.
अभी आप फेल हो गए तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था क्या कि क्या है, आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस रखने की क्या जरूरत थी करके इसने बोला कि भाई मैं भी रिवेल में दे रहा हूँ, मैं भी पास हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसका भी कुछ नहीं हुआ, बट ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। इसने जो पैसा भरा था, इसने हम्बल ग्राउंड के ऊपर भी बोला कि भाई मेरे को ये पैसा आप नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर में कंसिडर करना। इन्होंने बोला आवर 1 सीट इज वेस्टेड, वी आर स्टिल इन लॉस फॉर द नेक्स्ट 2 years। तभी 3 साल का कोर्स था, ये 2 साल का कोर्स ये साल से ही हुआ है 2020 से। टिल बिफोर दैट इट वाज 3 years कोर्स एनीवेयर यू डू, and if you are a BSc IT graduate you could take lateral entry into 2nd year। लेकिन वहां पे भी ये लोग एडमिशन लेते समय आपको डराते थे कि भाई आपको एग्जाम देनी पड़ेगी मैथ्स और सी प्रोग्रामिंग की, उसमें फेल हो गए तो फिर आपका ये पैसा भी जाएगा, हम रिफंड नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। अभी वो लोग डराते क्यों है? थिंक फ्रॉम देयर साइड, थिंक दे आर नॉट एजुकेटर्स, दे आर बिजनेसमैन। जो भी प्राइवेट कॉलेज चलाता है दे आर बिजनेसमैन। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो उनको 3 साल का पैसा मिलेगा, एंड फीस इज नॉट स्मॉल। 1,70,000 तभी फीस था, 5,10,000 हो जाता है, 1 साल का 1,70,000। मैं तो कोशिश करूंगा ना एज ए एम्प्लॉय कि मैं अपनी कॉलेज को 5,10,000 दिलाऊं ये बच्चे से, ना कि 3,40,000। So they were given these instructions to tell you, and people, even those who were my college topper, इतना उसको समझाया था, मैंने बोला था you stick to your word के I want lateral entry करके, उसको उन्होंने वैसा ब्रेन वॉश कर दिया, वो जाके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके आ गई। सर एमसीए में मैथ्स भी है? हाँ है सर। अच्छा, कितने सेमेस्टर्स? 1-2? अभी तो 1 सेमेस्टर तो है ही है। सर मतलब अभी हम लोग का फिर मॉक टेस्ट जैसा कुछ आया था हम लोग को मैसेज वेबसाइट ओपन करने के बाद, तो मॉक टेस्ट होने वाला है कि नहीं, या खाली इंटरव्यू? 12 तारीख को ही पता चलेगा मैडम। ओके सर, ये आपको 12 तारीख को ही पता चलेगा, दे विल टेल यू। और ये मे बी एनी क्वेश्चंस आस्क्ड में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, मॉक टेस्ट कैसे होगा? ओके सर, मॉक टेस्ट कैसे किधर होगा और क्या क्या होगा मॉक टेस्ट के अंदर, यू कैन एवरीवन कैन आस्क दिस क्वेश्चन। हाँ, सिलेबस उसका पूछ सकते हैं ना, क्या है सिलेबस, कुछ बताया क्या हाँ, आपने? हाँ। नहीं नहीं मॉक टेस्ट का सिर्फ मॉक टेस्ट। हाँ, तो देन और कितने मार्क्स का रहेगा ये भी नहीं बताया है। Yes, anyone is using Bluetooth यूज कर रहा है, प्लीज मेक श्योर 100% बैटरी बैकअप है, नहीं तो नहीं करना, मैनुअल वाला यूज करो, एब्सोल्युटली फाइन। रूम में कोई होना नहीं चाहिए, मेक श्योर। और जिसको नेटवर्क का इश्यू है ना, तो वो सेकंड डिवाइस रेडी रखो, मोबाइल का हॉटस्पॉट, हाँ मोबाइल का हॉटस्पॉट लेके रखो उस दिन। हाँ, सेकंड डिवाइस, डोंट बी क्रेजी। उस दिन अपना मोबाइल यूज ही नहीं करोगे, आपका डेटा प्लान यूज ही नहीं करोगे अंटिल योर इंटरव्यू इज ओवर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दैट डे, राइट? तो उसके पहले आप व्हाट्सएप वगैरह से लेके सब कुछ सी दैट इट्स नॉट, आई एम सेइंग दैट, बट देन द डे क्रिकेटर्स बेसिकली 5 days का टेस्ट मैच खेलते हैं, दे नेवर रीड अ न्यूज़पेपर एंड दे नेवर वॉच द न्यूज, इट्स नॉट अलाउड फ्रॉम द कोच। सो यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। आपके व्हाट्सएप में कोई फ्रेंड का मैसेज आया एंड समथिंग इज, अपना ब्रेन ऐसा वर्क करता है, सो वी शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड, फोकस्ड। कुछ नहीं करो चलेगा, बी विद द फैमिली चलेगा, बट ऐसे लास्ट मोमेंट तक ये सब नहीं करेंगे। सो मेक श्योर। फ्रॉम माय साइड इट्स डन। एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क, और देन लेट्स वाइंड अप। अगर कुछ नहीं है तो सर आपकी साइड से एनीथिंग यू वांट टू से? मैं ये अपलोड कर दूंगा, गिव मी 2 hours का टाइम, मैं 2 hours में अपलोड करूंगा इसको यूट्यूब पे, एंड देन लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग को। देखो मैंने आपको बताया, थिंक फ्रॉम द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के उसको बंदे को अगर मेरे को 40 जन को भी करना है 6 घंटे में, 6 hours मीन्स हाउ मच? ओके, 360 मिनट्स में मेरे को अगर 40 जन को करना है तो मैं किसी को भी 9 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। हाँ सर बोलो। सो ये आपको जो भी रहेगा वो मुश्किल से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 क्वेश्चंस रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, नॉट बियॉन्ड दैट। और वो आपको कुछ लंबा चौड़ा आप ये आपका फंक्शनलिटीज प्रोजेक्ट का बताओगे तो वो सुनने में नहीं रहेगा, इमीडिएटली दे विल स्विच ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अंडरस्टूड दिस। सर वो जूम पे होगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगा? वो लोग लिंक एक दिन पहले भेजेंगे कि उसी दिन भेजेंगे? नहीं, एक दिन पहले भेज देंगे आप। ओके कल मिल जाएगा आपको लिंक। मेरे ख्याल से टीम्स के ऊपर ही रहेगा, आप लोग को सबको टीम्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके सर। राइट,
Okay, अगर sir. टीम Okay. इंस्टॉल करने वाले हो आप लोग तो टीम पे एक फ्रेंड के साथ तो कंपलसरी एक बार कॉल करके, या कॉल नहीं बोलते उसको, हाँ, हम लेक्चर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं, वो कर लेना प्लीज एवरीवन. इट्स अ न्यू अगेन. आपका बरोबर चल रहा है. ये सर बोल रहे हैं इसके लिए कि आपका बरोबर लिंक चल रहा है. उस दिन ऐसा ना हो कि हम ये सब करने जाए. म्यूट अनम्यूट और वो सब सारा देख लेंगे ना. एंड मैं तो चाहूंगा कि आपका ये जो आपने अभी सेशन अटेंड किया ना, सो किसी ने कुछ अच्छा बोला, किसी ने दूसरे ने क्वेश्चन का अच्छा बोला, द बेस्ट वर्जन यू मस्ट हैव हैंड रिटन और इन योर मोबाइल में लिख दो, सामने रखो, जूम ओपन करना, बाजू में नोटपैड रखना एंड स्पीक पहला श्रेया? क्वेश्चन का आंसर एंड सो ऑन. प्रैक्टिस हमारा काम यही है कल तक. You all are TY pass out students, right? You don't have any other task. This is the only. 10 बार प्रैक्टिस क्यों ना करना पड़े. Let's become actor and actress. Those who do the rehearsals, right? कितना करते हैं retake. Yeah. Yeah, Shreya? Yes, sir. Yeah, you are using UPG Teams, no? Yeah. Yeah. I think you should not have any problem in your Teams part. Okay. सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि यूट्यूब पे भी दिखाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कैसे यूज करना है, सो Great. मे बी हेल्पफुल. बाकायदा ट्रेनिंग दिया गया था, 2-3 दिन ट्रेनिंग दिया गया था स्टूडेंट्स को कॉलेज में. इवन प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दिया गया था बिकॉज दे आर हैविंग 2400 प्लस लाइसेंसेस. ओके, या 2400 या 24,000 licenses they have it for teams. So at a moment, yeah, 2,000, 24,000. At a moment, 10,000 people can log in onto one meet. They have that much capacity. Okay. So you people install your Teams का आज ही कर लो, और किसी के साथ में आप चाहे तो डमी आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को ग्रुप पे जानते हो अभी, और आज तो सबने एक दूसरे को फोटो से भी देख लिया है करके. ओके, वर्चुअली, सो विजुअली आपने देख लिया है. सो विथ एनीवन यू कैन हैव दैट and you say I am hosting this and you join this, yeah, you host this, I will join this करके. So do that and make sure कि आपका बरोबर स्मूथ चलता है. या वो भी कर सकते हो. कल एक टाइम डिक्लेयर करो, सब लोग इंस्टॉल करो और एक लिंक भेज दो. कोई एक स्टूडेंट वो होस्ट बनेगा, बाकी सारे उसके ये बनेंगे गेस्ट, और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. यू नीड एनी सपोर्ट आप हम लोग को बता देना. ठीक है, एनीवन. ठीक है. या चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन. Yeah, finally any questions? Great. Great. All the best everyone. No questions. Yeah, Okay. give your Thank best. Yeah. And just Thank you, sir. Thank you, Yeah. sir. Thank you, sir. Okay. Yeah. परसों है ना? नहीं है सर, परसों Yeah, है. 12th. Yeah. Thank you, sir. चलो, bye. Thank you. थैंक यू.